कर लेते हैं। ओके सर। ठीक है, second question is how did Nelson Mandela describe the scene of inauguration? So Nelson Mandela first of all told about where the inauguration was taking place. So it was taking place in the sandstone amphitheater of the Union Buildings. So sandstone amphitheater which was created by the Union Buildings in Pretoria. So first of all, you are going to mention this, and then you are going to mention that this place was the seat of white supremacy. Okay, then he mentioned the people who had come there. So it was a rainbow gathering. Rainbow gathering क्यों कहा है? Because people of different colors were present in this gathering. People of different color, different nationalities, world leaders were present there. So it was a rainbow gathering of international leaders. So these were present there. Then he also mentioned about the people, about the various drills. So various parades, the chevron of Impala jets, making the South African, the colors of the South African flag, and after that swearing in of the first and the second vice president took place. So ये सारी की सारी चीजें you have to mention in this answer. सर हम ये खुद कर लेंगे। कर लोगे ना ये, क्योंकि देखो पॉइंट्स लिख दिए हैं, अब इसको कन्वर्ट करना है। अब ये यूं मत कर लेना कि सिर्फ ये पॉइंट्स आप लिख दो, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी सफिशिएंट। हाँ, इसको एक्सपैंड करोगे। अभी जो मैं बोल रहा हूँ तो दैट इज मच मोर देन व्हाट आई एम राइटिंग। हाँ, और एग्जाम में भी अगर पूरा कोशिश करोगे कि अभी ये पॉइंट्स भी मैंने क्या है ज्यादा लिखी हुई है, अभी अगर 2-3 बार अगर पढ़ लोगे आप तो समझ गए कि एक्चुअली वहां पर क्या हुआ था, तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर अ फ्यू पॉइंट्स। तो अगर लॉन्ग आंसर लिखना है तो एम्फी थिएटर याद करोगे, रेनबो गैदरिंग एक वर्ड होगा याद रख लोगे, परेड्स याद कर लोगे और स्वेयरिंग याद कर लोगे। तो 4 वर्ड याद रहेंगे, तो 4 वर्ड से 4 फ्रेजेस में कन्वर्ट कर लोगे, एंड देन यू आर गोइंग टू कन्वर्ट दोस फ्रेजेस इनटू 4 पैराग्राफ्स। तो वो करना आसान होगा, बट पर्टिकुलरली यू रिक्वायर a command over the language for this. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, what is the policy of apartheid and what was its impact on the blacks? So policy of apartheid तो काफी बार एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। So it was a policy of racial discrimination against colored people which began in South Africa. So this was ये policy of apartheid एक्सप्लेन कर दोगे, कलर कोडिंग वगैरह जो भी था, तो यू कैन ऐड फाइन डिटेल्स इनटू इट। देन व्हाट वाज इट्स इंपैक्ट ऑन ब्लैक्स? सो इंपैक्ट क्या था? इंपैक्ट मैं बस यहां पर लिख रहा हूं। तो दे लॉस्ट देयर फ्रीडम, लॉस ऑफ राइट्स, दे कुड नॉट फुलफिल, ये आंसर नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स लिख रहा हूं, देयर family and community obligations, could not achieve their full potential, were not allowed to marry the person of their choice. So this is how the policy of apartheid impacted them. So loss of rights including democratic rights. Democratic rights कौन थे? Right to vote, right to express their opinions, right to movement. Okay, next question is, what does Nelson Mandela refer to as an extraordinary human disaster? So Nelson Mandela refers to the policy of apartheid as the extraordinary human disaster.
So he has called it a human disaster because it completely destroyed the lives of a majority population in South Africa. तो disaster क्या करते हैं? Disaster results in destruction of life and property of people. तो इसमें भी हुआ था destruction of life and property, but of the colored people, especially blacks. तो अभी देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, आपको 2 नंबर में भी आया था, 3 नंबर में भी आ सकता है, ये 5 नंबर में भी आ सकता है. So you need to expand on it. तो सिर्फ ये छोटा सा नहीं लिखोगे, ये डेफिनेशन सिर्फ यही नहीं लिखोगे. So first of all you'll be mentioning that extraordinary disaster means, he means to say it is apartheid. ये मैं करा चुका हूँ पहले कई बार, तो you are just going to, I'm just writing the points, you are going to make an answer out of it. ठीक है, तो उसके बाद में लिखोगे how did it impact, how did it impact people. तो people वाले में जो ऊपर, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था, तो वो सारी की सारी चीजें मेंशन करोगे. then you can write the struggle, you can write about the struggle, what was done to alleviate the effect of this disaster. तो जो भी struggle की थी, African National Congress फॉर्म की थी, जो भी great leaders, the great leaders who emerged in South Africa, which resulted in the end of the policy of apartheid. तो ये 3 पैराग्राफ्स में आप मेंशन करोगे इसको. you'll be making 3 different paragraphs of this answer. ठीक है, कोशिश करनी है, खुद करना. अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आई एम देयर फॉर दैट. कर लोगे? सर तो हिला रहे हो, करके आते नहीं हो. यस सर. पानी पियोगे? सोना है? Okay, next one is describe the views of Mandela for black people who fought and sacrificed their lives, likes नहीं है, for the country's political independence. So Mandela said that the people who were before him were actually the torch bearers. So he carried forward their struggles. So he kept all those people जिनका भी नाम था, Yusuf Daddu is one. Remember, one name that I remember because he was of South Asian origin. और क्या क्या है, ऑलिवर टम्बूस वगैरह वगैरह. हाँ, तो वो वाला एस्पेक्ट आपको इसमें लिखना है. Question number 6 now. Describe the value of freedom for human beings and how is it important for growth of civilization and humanism as described in the lesson Nelson Mandela. अब ये important है. Describe the value of freedom for human beings and how it is being described. ये पक्का 8 मार्क्स का आ सकता है, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन, और ये आया भी हुआ है CBSE में 2014 में. अब यहाँ पर आपको बतानी है the value of freedom for human beings. What is the value of freedom for human beings and how is it important for growth of civilization and humanism. तो पहले मीनिंग, ये शायद क्वेश्चन का मीनिंग मैंने पहले एक्सप्लेन किया था ना. यस सर. ठीक है, इसको देखो, आपको लिंकेज बताना है. You need to describe the value of freedom, कि freedom की वैल्यू क्या है for human beings. तो वो बता सकते हो जो आपका नेल्सन मंडेला चैप्टर में बताया गया है. तो you need to describe the value of freedom for human beings there, कि वो in order to live the life to the fullest, in order to achieve their potential, to get a job, to have a family, freedom is very essential. ठीक है, तो value of freedom for human beings वहां पर हो जाएगी. Then how is it important for growth of civilization and humanism. अब civilization क्या होती है? Civilization is the continuity of human societies. तो civilization में आपकी art, culture वगैरह सब डेवलप होता है, science and technology डेवलप होती है. So without civilization these things cannot be possible. So अगर freedom नहीं होगी लोगों के पास में, so the development of civilization is also going to get affected.
किस तरीके से कि अगर फ्रीडम नहीं होती है तो दी half of the population or more than half of the population is going to be deprived of it. कि अगर आर्ट डेवलप करनी है, अब ब्लैक लोग हैं, जो कलर्ड लोग हैं, तो उनकी भी तो अलग आर्ट है, अलग कल्चर है, वहां पर भी तो ग्रेट पर्सनालिटीज होंगी ही, तो दे आर नॉट गोइंग टू गेट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देमसेल्व्स, और वो अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो दे विल नॉट बी एबल टू एक्सेल इन इट. So ultimately civilization development is going to suffer. Then is humanism. So humanism refers to the ideas and beliefs related to being a human. तो human बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? Love, care, compassion for other people, caring for others, helping each other, ensuring freedom. ठीक है, तो ये एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमनिज्म के. तो ह्यूमनिज्म किस तरीके से होगा अगर फ्रीडम नहीं हो? तो जब फ्रीडम होगी, एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली, देन ओनली वी कैन से दैट ह्यूमनिज्म इज गोइंग टू प्रिवेल. तो सबसे पहले इनको, इस आंसर को कुछ पैराग्राफ्स में करोगे आप. द फर्स्ट पैराग्राफ इज गोइंग टू बी अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम. सुनना नहीं, जब लिखना हो तो ठीक, हाँ अब लिख लेंगे, अब इसमें दिमाग की जरूरत नहीं है. Importance of freedom for humans. Then we are going to build in the next questions, next paragraphs. We are going to build in the first paragraph. We are going to build a linkage between freedom and growth of civilization. उसके बाद में हम freedom and humanism की बात करेंगे, और फोर्थ पैराग्राफ होगा आपका कंक्लूजन का. ठीक है, तो 4 पैराग्राफ में ये आंसर लिखेंगे हम. ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले एक बार ट्राई कर लो. ये वाला जो 6th आंसर है, ये पर्टिकुलरली मैं ड्राफ्ट करके आपको भेज दूंगा, लेकिन पहले खुद ट्राई करके देख लेना किस तरीके से लिख पाते हो. कॉपी तो वही करना है जो मैं भेजूंगा, लेकिन एटलीस्ट दोज पीपल हु वांट टू ट्राई, एटलीस्ट ट्राई. क्योंकि अब जरूरी नहीं है ये वाला क्वेश्चन आए, इसके अलावा कुछ और पूछा जा सकता है, which is going to require the knowledge that you have gained during this chapter, but it is going to require better writing skills. तो ये डिस्कशन मैंने इसलिए की है, जिन्होंने भी सुनी है, so that you can categorize the parts. क्वेश्चन में पूछा क्या है वो एनालाइज कर लो, उसके बेसिस पे आप हेडिंग्स बना लो. मैंने कुछ हेडिंग्स बना ली हैं जिनके ऊपर मैं पैराग्राफ लिखने वाला हूँ, और फिर इन हेडिंग्स के ऊपर आई विल बी राइटिंग. इनके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस बना सकते हो, उसको आंसर कर दो, या इसी को ही क्वेश्चन बना दो. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमंस, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम फॉर ह्यूमंस. तो उसका भी आंसर लिखोगे, 2-3 लाइन का आंसर वो हो जाएगा. हाउ इज फ्रीडम रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, उसके 3-4 लाइनें हो जाएंगी. फिर फ्रीडम एंड ह्यूमनिज्म के ऊपर 3-4 लाइनें हो जाएंगी. तो 100-200 वर्ड्स तो ऐसे ही हो जाते हैं अगर प्रॉपर फ्लो में करोगे. अगर ये आप ऐसे सेग्रीगेट नहीं करते हो, कैटेगराइज नहीं करते हो, तो 10 लाइन क्या 2-3 लाइन भी लिखना मुश्किल हो जाएगा. देन यू विल बी कंफ्यूज्ड कि लिखा क्या जाए. ठीक है, ये मैं ड्राफ्ट करके आपको भेज दूंगा, और बाकी क्वेश्चन तो कर ही लेना. ये फाइल तो मैंने भेजी हुई थी पहले से. अगर और कोई डाउट है तो प्लीज बता सकते हो. सर मैंने आपके पास 2 पैराग्राफ के हिंदी पूछी थी, आपने बताया नहीं. क्या पूछा था? 2 पैराग्राफ के हिंदी उस पेज के अंदर से. देखो हिंदी नहीं पता चलेगी, हिंदी नहीं बताऊंगा. आई हेल्प यू अंडरस्टैंड द मीनिंग, बट आई एम नॉट गोइंग टू ट्रांसलेट इट इन. अगर हिंदी बताने वाला काम वही हो जाएगा, फिर आप हिंदी सीख रहे हो. सर मैंने उनकी बहुत ट्राई कर ली, मुझसे बन ही नहीं रही. आप टाइप करो, एक तो देखो सुनाई नहीं दे रहा है, वो ब्लूटूथ स्पीकर काम नहीं कर रहा है अभी. ठीक है, तो जो डाउट है एक बार पोस्ट कर देना. अगर कुछ एस्पेक्ट का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो हाँ उसका हम देख सकते हैं, वी कैन सी मतलब हाउ टू वर्क ऑन दैट. लेकिन वो क्लियर कट अगर आंसर एक्सपेक्ट करोगे सीधा आंसर नहीं मिलेगा.
आंसर खुद ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अगर और कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। एक मिनट रुको, ये 4 टाइम रीड किया, इसी पैराग्राफ की कह रहे हो जो अंडरलाइन किया हुआ है? यस सर। और यहाँ पे देखो, टू इम्पोर्टेंट इन्वेंशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट, ये भी समझ नहीं आया मुझे। यहाँ से नीचे से 6th 7th लाइन में दी सेकंड। देखो भाई, जो ये लिखा हुआ है, दिस वाज मेड पॉसिबल प्राइमरीली ड्यू टू द वर्क ऑफ टिम बर्नर्स-ली, तो इट मींस दैट जो भी इंटरनेट का एवोल्यूशन है, हाँ, ये वर्ल्ड वाइड वेब है, द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट एंड ऑल, सो इट वाज मेड पॉसिबल प्राइमरीली मींस बेसिकली फ्रॉम द वर्क ऑफ टिम बर्नर्स-ली। तो टिम बर्नर्स-ली ने जो भी वर्क किया है, तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट। क्यों? क्योंकि इन्होंने हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल डेवलप किया था, HTTP। तो HTTP के बारे में फिर बताया हुआ है, HTTP is used to connect documents written using a language called hypertext markup language। तो HTTP का डेवलपमेंट किया था, और HTTP आपका यूज होता है ट्रांसफर करने में डॉक्यूमेंट्स को which are written in HTML। तो यही लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा मतलब कंप्यूटर्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जरूरत है। ओके, मुस्कान इज आस्किंग द मीनिंग ऑफ रिप्लीट। रिप्लीट मींस फिल्ड। तो यूं कहते हैं ना कि इंडिया इज नाउ रिप्लीट विद कोरोना वायरस केसेस, दैट मींस इट इज फुल ऑफ कोरोना वायरस केसेस नाउ। सीसीई अगर एजुकेशन के टर्म्स में पूछ रहे हो तो इट इज कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब कॉन्टेक्स्ट बताना पड़ेगा, मैं एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं। So it was an evaluation system which was discarded, I think, 2 years ago. हो गया या और कुछ भी क्वेश्चन है? नो सर। मुस्कान पूरा सेंटेंस भेजो, क्या कौन से वाले पैराग्राफ में कहां पर है? मैं फिर ग्रुप में ही रिप्लाई कर दूंगा अभी तो, ठीक है? अभी आई एम डिस्कनेक्टिंग इट, तो जो भी आपका सेंटेंस है ग्रुप में भेज देना, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? तो प्लीज कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस नाउ। Good afternoon, sir.